Hi everyone, this is Gurmeet Chaudhary. Hi, this is Shireen Singh. Hi, this is Kashyap. Congratulations, Bollywood Spy, for 4 million followers. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ बेदर्दी से प्यार का सॉन्ग के कम माल के कलाकार शिरीन सिंह, कशिश वोरा एंड मेरे प्यारे दोस्त गुरमीत चौधरी है। सबसे पहले गाइस ये बताइए कि क्योंकि ये जो गाना है वो इट्स क्रॉसिंग न्यू बेंचमार्क्स विद जबरदस्त व्यूज, तो कैसा रहा रिस्पॉन्स, फीडबैक बताइए। फीडबैक हम सभी एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले हमारा 20 मिलियन व्यूज हो गए हैं और जी। कुछ सिर्फ 1.5 दिन की बात है। और हम सभी ने बहुत ही मेहनत की है। जब आप कोई चीज में इतनी जी जान लगा के मेहनत करते हो और उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, 20 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और सुपर्ब रिस्पॉन्स है। Yeah, Yes. same as Gurmeet said that we got 20 millions and that too in 2 days. I think that's huge. And I'm sure we're going to grow more and more day by day. And people are loving us and the story. So what else? They love our song. And I can just say thank you to them for it. Shireen? And a lot of love pouring in. So people are loving the song, they're loving the concept, they're loving the story. So there's a lot of messages coming in, a lot of love pouring in. So yeah, a beautiful song. जी, गाना वीडियो इज वेरी सिंपल बट स्वीट है और एंड शॉट इन वेरी नॉस्टैल्जिक मैनर। तो वाज दैट द मेजर रीजन फॉर यू गाइस टू से यस फॉर दिस सॉन्ग? Yes, it is one of the reasons, of course. The story is unique because I don't think कि बहुत सारे music videos में ऐसे बचपन की एक story दिखाते हैं जिसमें आप एक love triangle दिखा रहे हैं and the characterization of each and every one. So yeah, of course, that is one of the reasons that we really liked. Of course, there's Gurmeet, sung by Zubin Nautiyal. It's a T-series song. And the director is Ashish Panda. And I've already worked with him in Dil Tod Ke last year. So for me, it was like a plus point for everything. The lyrics, it's beautiful. So yeah. What are you guys? Shireen? Yeah, I think the lyrics, yes, because it was Zubin ki awaaz hai. He's got a beautiful voice. So whatever he sings becomes magic. So this song is a song which, it's a remake of a song which was there before. So the Correct. song itself is so lovable. And then the concept, when Ashish sir narrated the concept, I said, wow. Because I think everybody's gone through this experience of childhood crush and childhood love. And then, when you grow up, you separate. So yes, I love the concept. And who will say a no to a T-series ka song? Because I think Bhushan sir's choice of songs, he knows what the audience are looking for. So the song is beautiful. It's a T-series banner. It's Zubin in it. It's composed by me brothers, Ashish Panda, the director. So it's got a package of everything in it. So yeah, that was obviously the reason he said it yes. Gurmeet? वेल जैसे इन दोनों ने कहा बिल्कुल वैसा। आई मीन जब टीम अच्छी होती है तो आपको आप एक्चुअली जब कोई अच्छी चीज आती है तो आपका मन बोल देता है कि यार ये करनी है, ये करना है ये चीज। और जब टी सीरीज करता है तो हम सभी को पता है, ये बोलने की भी बात नहीं कि जब टी सीरीज कोई काम कर रहा होता है तो उससे अच्छा बेहतर इस मार्केट में कोई है ही नहीं। तो बस जुबीन है, मनोज मुकुंद सर इतनी टैलेंटेड हैं, डायरेक्टर आशीष पांडा, पूरी जो टीम थी, बीट ब्रदर्स ने कंपोज किया। आई थिंक जो स्टोरी था, बहुत सारी चीजें थी जो बिल्कुल ये सारी रीजंस थे। स्टोरी अच्छी थी तो कहते हैं कि जब सारी चीजें एक साथ अच्छी हो जाती है तो वो लोगों को पसंद आती है। गुरमीत, वो कफे वाला जो सीन था जिसमें आपका दिल टूटता है, वो काफी टचिंग सीन था, बहुत ही कमाल का सीन था। और उसमें जो पेन के जो एक्सप्रेशंस आपने दिखाया, ऐसा लगता है कोई पुराना जख्म ताजा हो गया होगा, तो कोई ऐसा हार्ट याद आ गया जो काफी टफ था आपके लिए? हाँ एक्चुअली मैं एक्चुअली गानों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे गाने बहुत पसंद है। और जब खुद का गाना होता है तो मैं आपको बता दूं, मैं पहला जब कोई भी काम करता हूँ, गाने को स्पेशली जब होता है, जब तक गाना अच्छा नहीं हो तो मतलब ही नहीं होता। और जब मैं काम करता हूँ तो उस गाने से मुझे प्यार हो जाता है। मैं एक्चुअली वो गाने में एक अलग ही बात है। जब परफॉर्म कर रहा था, ये सब मैजिक था सिर्फ गाने का। जब मैं गाना सुन रहा था, जब परफॉर्म कर रहा था, जिस तरीके से आशीष जी जो हमारी डायरेक्टर है उन्होंने मुझे बताया
तो वो हो रहा था क्योंकि गाने की वर्डिंग्स, लिरिक्स वो इतने अच्छे हैं, वो बिल्कुल मैच करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो बस इमोशंस आ रहे थे, फिर बचपन की यादें याद कर रहा था कि कितनी लड़कियों ने मुझे धोखा दिया, हाँ, तो मैं रो रहा दिख था। रहा था। बट क्या आप दोनों को लगता है कि किसी ने इनको धोखा दिया होगा, ऐसा कुछ लग रहा है? Yeah. हाँ, हो गया। Sure. ओके। शिरीन ने He's तो innocent. मैं Yeah, very very sound. sweet. Yeah. सो शिरीन, काफी टफ एंड काफी कोल्ड हार्टेड वे में आपको दिखाया गया है इस सॉन्ग में। तो वर यू स्केप्टिकल टू से यस, कि कहीं पे लगा था कि नहीं यार ये थोड़ा सा मतलब टोटली आप एक साइड हो, ये दोनों एक साइड है और गाना भी एक साइड है? No, actually the story is such that मुझे पता ही नहीं कि ये मुझसे प्यार करते हैं. Like I take him as a friend, and he's got this crush into him to marry me when he grows up. And he comes to me the day I'm getting married, and he says this. So then for me to take a decision, like what are you saying? It's my marriage. So that was the scene. And मुझे कभी ऐसा नहीं लगा क्योंकि ये होता है. There are women who are practical. There are women who cannot take decisions due to family pressure. So yeah, I was good with it. ये गलत है, लेकिन हाँ, बंदा इतना दिल से प्यार कर रहा है, बचपन से प्यार कर रहा है, Yeah. उसकी आंखों में वो प्यार दिख रहा है, वो आंखों को इतना सब देखो। कुछ कर रहा है। आंखों में कहाँ दिखता है आजकल? बाइक इतनी lockdown में। बाइक में वो घुमा रहा है, साथ में अकेले खाना पीना खा रहे हैं, फिर भी लड़कियों को समझ नहीं आता ये क्यों। तभी दिल बचपन में टूटता उसने है, साइन तभी भी करवाया बेदर्दी उससे। जैसे गाने बनते हैं। हार्ट भी बनाया था स्केच में। हाँ, हार्ट में बना के साइन करवाया हाँ। स्पेशली बचपन में। मतलब बच्चा बचपन से वो देख के बड़ा हुआ, उसको लगा, और इन्होंने इतने प्यार से बुलाया कि कैफे में आ जाओ। वो बाइक में इतना हंसता खेलता जा रहा था, और जैसे ऊपर गया तो मतलब सिचुएशन ही बदल गई। मतलब पेंडेमिक का थर्ड वेव से हमें ऐसा फील हुआ कि अभी अरे अभी क्या हुआ। बट इस मौके का फायदा उठाया कशिश ने, लास्ट में आके सीधा हाथ पकड़ लिया, तो मौके का फायदा उठाया उसने। बट सॉन्ग के एंड में क्यूट चैप्टर रिवील होता है ऑफ अ साइलेंट एडमायरर, तो बहुत ही कमाल का था वो। तो हाउ डू यू डील विद योर एडमायरर या आपके साइलेंट एडमायरर? Kashish, that's for you. For me? Sorry, Acha. I was. आपके कैरेक्टर की बात हो रही है। Sorry, my bad. Yeah, how do I deal with them? I just maintain my silence and then I don't say anything. That's how I deal with it. Like it's better not to say or hurt someone, कोई आपको admire करता है. So person understands. But yeah, in the song, the last part आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो that's a really beautiful part because जो lyrics होते हैं दोबारा ना मिला, and when मैं आके हाथ पकड़ती हूँ तो the end is that दोबारा मिला. So that's very beautiful. I find that very nice. ओके, अभी बहुत सारे फैंस के क्वेश्चंस आए और सबसे ज्यादा जो उन्होंने पूछा है आप तीनों से व्यूज अबाउट जुबिन की आवाज, गाने में जो मैजिक, वो आजकल तो इस तरह के ही गाने गा रहे, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, एंड पूरे के पूरे अतुल्ला खान साहब की लग रहा है नेक्स्ट वर्जन पूरा 2.0 इज गोइंग। यार मुझे लगता है कि वो स्टार हैं, और उससे भी सबसे अच्छी बात ये है कि उनके गाने सबसे ज्यादा चल रहे हैं। इसका रीजन ये है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो एक ऐसे कलाकार हैं जो दिल से भी बहुत अच्छे हैं। जब आप दिल से अच्छे होते हो तो वो परफॉर्म जब करते हो तो उसमें वो एक अलग बात है। जुबिन में सबसे खासियत ये है, ही इज वेरी टैलेंटेड, एंड उसके साथ साथ काफी डाउन टू अर्थ है, और हम सभी को वो बहुत पसंद है। मुझे भी जब पता चला कि जुबिन गाना गा रहे हैं तो मुझे लगा कि यार इससे बेहतर, इस गाने से बेहतर और क्या हो सकता है। What about you? Same. Zubin's voice is magical. आपको it just touches your heart and soul. तो आपको आप सुनते ही आपको लगता है कि वाह क्या गाया है, या क्या आपको छू जाता है अंदर तक. So I'm a big fan of Zubin Nautiyal's voice, and he's a great person. So I'm sure उनकी आवाज में भी आता है निकल कर. Sharon? Yeah, as my co-star said that, of course his voice is magic. And I've been a fan of his voice. I've written that in all my articles. I always wanted to do a Zubin song. So for me, it was like a dream come true, doing a Zubin song. But I also feel that, romantic गाने ऐसे होते जो हर किसी की आवाज में अच्छा नहीं लगता.
So there's this Arjit Singh and there's this Zubin. So इनकी आवाज में रोमांटिक गाने की रोमांस की बात ही अलग है. You start feeling it. You start feeling as if it's happening with me right there. So yes, his voice is magic. Totally. Yeah, romance से ज़्यादा I think it's like कि प्यार भरा हुआ आवाज में. Right. Yeah. इस केस में दर्द भरा हुआ आवाज. Yeah. ये टैटू की बहुत बातें हो रही, टैटू ऑन नेक के बारे में, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग बताइए. इसने तो जान ही ले ली है मतलब. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टैटू बना ही लेता हूँ, है ना. इस गाने के लिए यादगार रहने के लिए टैटू बना ही लेता हूँ. एक्चुअली इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ आप जब कर रहे हो तो आप कुछ नया करने को, आप नया क्या कर रहे हो. तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक टैटू बनाता हूँ. तो मैंने बहुत रिसर्च, खुद से एक दिमाग में ये बात आई कि कुछ अलग क्या कर सकते हैं. तो मैंने कुछ टैटू देखे, बहुत सारे स्टार्स के टैटूज देखे, और उसके बाद मैंने अपने मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है वो पिछले 10 साल से मेरे साथ हैं, एंड इज वेरी टैलेंटेड, अरविंद ठाकुर. उनको मैंने ये आइडिया बताया कि यार आपका, क्योंकि पैंडेमिक भी था तो हम तुरंत ऐसे आर्टिस्ट हमें मिल नहीं सकते थे, कि क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सेट पे एक रहते हैं और वो टैटू बनाते हैं. तो जब अरविंद से उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला हम बना सकते हैं, और उन्होंने बनाया. और उसके बाद जब हम देहरादून पहुंचे तो मैंने एक मॉक शूट किया. एक्चुअली हमारी डायरेक्टर को भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ. ईयरिंग के बारे में भी मैंने सोचा. तो वो सारी चीज मैंने लेके रखा हुआ था. और जब कल शूट होने वाला था तो एक दिन पहले मैंने मॉक शूट किया. मैंने खुद से शूट किया एक रोमांटिक गाने पे, और वो लुक दिखाया. और उसके बाद जब मैं डायरेक्टर से मैं मिला तो उनको मैंने दिखाया, एक सजेशन लिया कि सर आपको क्या लगता है अगर इस गाने के साथ, इस इमोशन के साथ क्या एक टैटू और ऐसा कुछ चल सकता है. तो उन्होंने मॉक शूट देखा तो उनको बहुत पसंद आया, और आशीष जी ने बोला हम कर सकते हैं. तो यहाँ से टैटू का एक्चुअली स्टार्ट हुआ. और जब शूट पे हमने किया तो हमें पता चल गया था कि कुछ अलग एक कैरेक्टर आपको दे रहा था, वो इमोशंस के साथ जा रहा था. तो अभी जो रिस्पांस भी आया है, बहुत लोगों ने ये बोला कि यार टैटू बहुत अच्छा है, आपका ओरिजिनल है क्या. तो ये सारी चीजें चल रही हैं. तो अच्छा लगता है कि जब आप कुछ सोचते हो और वो लोगों को पसंद आता है. तो डायरेक्टर का तो फीडबैक आ गया, बट इन दोनों का फीडबैक क्या था? इनका ये था कि ये चाहते थे कि रियली मुझे आज पता चला. आई थॉट द टैटू इज रियल, एंड मुझे आज ही पता चला दैट द टैटू इज नॉट रियल. इट्स एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ना हमारे अरविंद दादा के. बाद में तुम्हारे मुझे जैसे बाद में तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला, तो टैटू के बारे में अभी पता चला. मैं चाहता हूँ कि आप अभी आप भी एक टैटू लगा लो. Oh, you're telling me? I'm not a tattoo person at all. नकली लगा सकते हो. एक लगा के फिर आप मिटा सकते हो. हाँ, नेक्स्ट शूट पे आप टैटू लगा लो, उसके बाद मिटा दो, उसमें क्या है. Since the song deals with heartbreak, we have been watching reality shows में जब भी अगर इंडियन आइडल जैसे शोज की बात करें कि जब भी हार्टब्रेक सॉन्ग कोई भी गाता है तो उससे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पता है, और व्यूज अच्छे आते हैं, वोट्स अच्छे आते हैं. तो जानना चाहूंगा आप तीनों के क्या व्यूज है ऐसे शोज पे और इस तरह के जब कोई गाने परफॉर्म करता है तो. कशिश, क्या आपको भी अच्छे लगते हैं इस तरह के रियलिटी शोज? ओके, आई स्टार्ट. आई थिंक जितने सैड सॉन्ग्स होते हैं या हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स होते हैं, ये हर किसी से कनेक्ट होता है. Everybody's gone through a heartbreak. Everybody's gone through a breakup in their life. So I think इस तरह के गाने everybody gets connected to, and they listen to it and they start thinking of their past life that they've gone through. So क्योंकि गाने ऐसे होते कि हम तभी सुनते जब हम फ्री होते. Either we are traveling, we are in the car, or when we are free, we are in a different zone where we want to listen to the song. So we immediately connect to our past. So that's one of the reasons I'm sure why these breakup songs really do well. But do you watch these reality shows, ये Indian Idol जैसे जो पूरे singing shows होते हैं? Yes, of course I watch them. Yes, of course. I think everybody watches them. And सब लोग बहुत पसंद करते हैं because there are so many new talents. Like how even we are new talents. Of course, at least new talents के पास एक platform है आने के लिए, and they can showcase their talent. And वहाँ से कितने लोग निकल कर आए हैं, Indian Idol or so many shows like that. Correct. So I think it's a great platform. Zubin has also been part of such shows. Of course, and हम लोग lucky एक time या era में है जहाँ पे ये सब चीजें अब हैं हमारे talent को दिखाने के लिए. So yeah, of course. Right. Actually, reality shows बहुत सारे. Yes, please.
And as your question was that reality shows में जब बच्चे sad songs गाते हैं, heartbreak songs गाते हैं, they get more votes. The reason is because जब वो songs गाते हैं तो audience connect हो जाते हैं. Even the judges कभी-कभी आप देखिए वो भी they become very very emotional. So they start connecting to the song rather than the participant. So yeah, that's a reason I think why these songs really do well. Gurmeet? वेल रियलिटी शोज काफी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे टैलेंट अपना टैलेंट वहां पे दिखा जो कंटेस्टेंट है वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं वहां पे और लोगों की नजरों पे आ सकते हैं। तो काफी दफा जैसे जब मैं झलक दिखलाजा कर रहा था तो लोगों को पता नहीं था कि मैं डांस कैसा करता हूँ और वहां से मुझे एक नई जर्नी दिखाने को मिली और वहां से आज मुझे लोग डांसर बोलते हैं क्योंकि वहां से वो शुरुआत हुई लोगों तक पहुंचा पाया। लेकिन जो नए जो कलाकार है जो छोटे शहरों से छोटे गांव से आना चाहते हैं तो आई थिंक रियलिटी शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना टैलेंट जरूर दिखा सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, अपने टैलेंटेड लोगों को आगे आने का मौका मिलता है इससे। So true. In fact, Nora Fateh also, she's such a great dancer, but she came from Jhalak and then now everybody knows about her talent. So I think it's good for everyone. So एक और रियलिटी शो में आप थे गुरमीत, खतरों के खिलाड़ी। तो आपके फैंस ने पूछा है कि इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई है आपके दोस्त यहाँ पे जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने मुझे लगता है टीवी के जितने बड़े रियलिटी शोज हैं सारे कर लिए हैं, जीत भी लिए हैं। तो खतरों के खिलाड़ी मेरा फेवरेट हमेशा रहा है क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, एक्शन मुझे बहुत पसंद है और वहां पे मैंने काफी इंजॉय किया है और काफी बड़े बड़े स्टंट्स किए हैं। खतरों के खिलाड़ी तो मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए, अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपको डर से निकालना है तो उससे अच्छा शो कुछ हो नहीं सकता। तो कोई फ्रेंड्स है इस बार आपके जिनके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? अभिनव शुक्ला, वो मेरे साथ, मैं उनके साथ काम भी कर चुका, हम लोग काम कर चुके हैं और मेरे दोस्त हैं। बहुत सारे एक्चुअली दोस्त हैं। तो मुझे देखना होगा कि कैसा परफॉर्म कैसे कर रहे हैं वो, कैसे खेल रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। जो अच्छा खेल रहा है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके। एक और सवाल आपके लिए ये आया कि आपने और डेबिना ने जब रामायण में काम किया था राम सीता के रूप में, एक अलग ब्रांड, एक अलग ही छाप छोड़ी थी आप लोगों ने। उसके बाद काफी लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी उसके आसपास नहीं आ पाया। जो एक अरुण गोविल साहब ने कर दिया था, उसके बाद जो आप लोगों ने किया, ये दो एक आइकॉनिक हो गए। लेकिन ये फैंस ये पूछ रहे कि अगर आजकल बात चल रही है कि बड़े वे में बिग बैनर फिल्म बनाना चाहते हैं रामायण के ऊपर, तो अगर आप लोगों को लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो हाइपोथेटिकली किस स्टार्स को आप देखना चाहेंगे? इवन यू गाइस कैन आल्सो सजेस्ट कि क्या लगे। मैं तो अपने आप को ही देख सकता हूँ, है ना? क्योंकि मैंने 1.5 साल रामायण किया है और उसको मैंने जिया है, उसका किरदार को। तो मुझे और कोई दिखता नहीं है। यस, मुझे ऐसा लगता है ये जब आप रामायण जैसे ऐसे किरदार जब करते हैं तो आपको ये समझना होता है। ये बात आनंद सागर जो है, वो जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने पुराना रामायण भी उन्होंने किया था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आप ऐसे किरदार करते हो, भगवान वाला जब आप किरदार करते हो, तो आपको ऐसा फेस लेना चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो, क्योंकि लोग आपको भगवान आपको देखने वाले हैं। उनमें जब तक आस्था नहीं आएगा तब तक वो हिट ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक ऐसा किरदार, ऐसे किरदार के लिए एक नया फेस चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो। जब आप ऐसे लोगों को लेके आते हो, नए टैलेंट को लेके आते हो, उसमें जब रखते हो उनका, जब आप तब उनमें वो इमेज आप देख सकते हो। तो हमारे साथ भी वही हुआ था, क्योंकि चैनल बोल रहा था कि उनको बड़े स्टार्स चाहिए टीवी के, और ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें हो रही थी और बहुत सारे ऑडिशन हो रहे थे। लाखों में ऑडिशन स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा था कि हमें नया लड़का चाहिए, नया लड़की चाहिए, ताकि उनमें लोग भगवान देख पाए। वाह, क्या लगता है आप लोगों को, यू शुड ओनली डू के कोई और एक्टर्स को आप देखना चाहती हैं? आप ऐसा मत बोलो। नहीं because आज भी जी, people remember him so much for his role as Ram, because मुझे when I showed this song to my nani and she's 75 plus, but she asked me कि who's your co-actor? I told him, नानी आपको जिसके आप इतने बड़े फैन थे शो के, and Ram who played you, so yeah, so everybody remembers him, for that, especially for that. Yeah, I think definitely अगर वो फिर से बन रहा है तो I think Gurmeet should try for it, because लोग जरूर देखना चाहेंगे इनको इतने सालों के बाद कि ये क्या करेंगे अब।
कैसे करेंगे. So definitely we should do it again. चलो, fingers crossed for Thank you that, so and much. also fingers crossed for कि बेदर्दी से प्यार के बाद वापस आप तीनों दोबारा आए एक और नए गाने में, एक और अतौला खान साहब का गाना, एक और जुबिन का गाना जो अगेन मिलियंस पे मिलियन व्यूज लेकर आए. So best wishes for that, and thank you guys for being with us. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. Take care.